So we start today with problems with all the laws that we had studied. So I'll just keep the laws written here for your quick observation. The laws of exponents. And believe me, the new book, that is the Ganita Prakash or the R.D. Sharma that even is in my hand, the standard of problems are much, much below. The good problems are good in the previous book. So maybe I may bring up some additional problems also. Okay, let's go. So we had x to the power m multiplied by x to the power n is given by x to the power m plus n is same. I had written a, doesn't make very much difference. X to the power m divided by x to the power n is x to the power m minus n. Then we had x to the power m to the power n was x to the power mn. Then we had x to the power m multiplied by y to the power m is xy whole thing to the power m. Then we had x to the power minus m is 1 upon x to the power m. Then the sixth one we had x to the power 0, which was equal to 1. And the seventh one was nth root of x can also be written as x to the power 1 by n. I could have easily brought up one of you to the board and made you write the 7 formulas. Means if the devil inside me would have woke up, I could have easily asked any one of you to come here and write all the 7 formulas, which I know would have been very bad. Right? Maybe for 1 or 2 it might have been bad, but still I did not do that today. That does not mean that I will not do it sometime later. Okay? Be prepared for that. Padna bahut zaruri hai. Okay. As we keep talking out here, and all of you all are out here, so okay, so you have a next class. 16th is next Tuesday. 16th of June is a Tuesday, right? So 16th June. हाँ, वो तो सुबह हो जाएगा, आप तो शाम को यहाँ पे आओगे. ये कोई नया चीज थोड़ी बता रहा हूँ. It doesn't mean, see, now all those things get away from your mind. I have a school test tomorrow, I have this. We have learned this long back. And I told you to keep preparing. That way though we can never have test. I started my course much earlier than your school also. Then there's not something new. वो सब छोड़ दीजिए. उस दिन मेरा स्कूल में टेस्ट है, स्कूल का अगर कल भी स्कूल का टेस्ट है, tomorrow I have a unit test, I won't come to tuition. That will not benefit you. You mean to say that you will read everything one night before? Our class is in the evening. You'll read one night before. Then you're not learning. Even if you score good from my side, I have no liking for you. According to me, it's not about scoring. According to me, it's about learning. We are doing rational numbers since April. We'll have our test on rational numbers and we will combine mass and weight also with it. Okay, it's 2. And it will be on 16th. Likh lijiye. 16th will be your test day. Guys who have given me your test copies, very nice. Avian, I'll brief you how the test will be online. Don't worry. Okay, start preparing. And guys who have not given your textbook, at least ensure that you come with a textbook on that particular day. 16th is your test on rational numbers and just mass and weight. Nothing more. All topics related to mass and weight, whatever we had discussed. Okay? So we go back and we start our problems. वो सब छोड़ दो नहीं बेटा. उस दिन test है. So that day in school we have got annual day. Right. And I'll put it up on parent forum also as well as on Teams. Whoever is missing, how many of you are there? There should be 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pratit is online. 8. One more is missing. Swayam is missing. So Swayam also it will be going. Right. Fine. Chale. So let's see some problems based on this. Now the problems will be random problems which might use any of these laws. Where this is where it gets tricky. This is where it starts getting tricky. Suppose somebody has said
simplify 2 to the power 3 to the power 2. They've asked you simplify this and show as a single exponent. Okay, the question is something like, say, simplify and write in exponential form. So they're asking you simplify and write in exponential form. The question itself will tell you which formula or which law to pick up. They have asked you simplify it, मतलब इसको आसान कीजिए, and express it in exponential form. Finally, your answer should be some blah blah to the power tla tla. That is exponential form. 25 is numerical form. 5 square is exponential form. Have you understood? So finally हमें क्या बोला है? Don't show it as number, but show it as exponential form. मतलब we have to show a pigeon and on a peacock and on its head वो दिखाना है हमें, क्राउन दिखाना है. चलिए करते हैं. इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो जाएगा? x to the power m to the power n x to the power mn अप्लाई हो जाएगा. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं that this can be written as 2 to the power 3 multiplied by 2, which is nothing but 2 to the power 6. Agreed? Now you ask yourself, is my answer as per the way they decided? मसाला डोसा लाइएगा, आलू बाहर लग के लाइएगा. What did I ask? मसाला डोसा, आलू outside. So how should you serve me? The sada dosa with the aloo outside. Yes or no? After that, should I scream at you? Not at all. यहाँ में क्या बोला? Simplify कर दो और exponential form में लिखो. Is this in exponential form? Yes. Is it simplified? Quite simplified. There are no brackets and any hodgepodge. Job is done. Job is done. And based on the question, you will understand which law to be picked up. समझ में आया? ठीक है? एक और क्वेश्चन करें ऐसे टाइप में. ठीक है? Suppose, और साथ साथ करते जाइए. ओके, somebody says 2 by 3 to the power 5. ठीक है, 2 by 3 to the power 5 और फिर आपको एक स्क्वायर भी डाला. देखो 2 by 3 to the power 5 फिर एक स्क्वायर भी डाला. Question is simplify and write it in exponential form. What is exponential form? Exponential form is always some peacock's head on which there should be some crown. Right now 2-3 crowns are there. तो इन्हें संभाल लें हम. आइए, इसका exponential form क्या हो जाएगा? The 2 by 3 is the blah blah multiplied by 5 into 2. So I write it as 2 by 3 to the power 10. Have I represented in exponential form? Yes. Job done. Job done. ठीक है? Just for your knowledge, whenever you write 2 by 3 to the power 10, this means that 10 is a power for the numerator also, 10 is a power for the denominator also. All right? We don't need to use it here. This is just for our information. Did you understand? अभी समझ में आ रहा है बेटो? ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं. जबरदस्त प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम को कंबाइन करते हैं. आइए, let's say we have a 2 to the power 3 to the power 2 multiplied by a 3 to the power 2 to the power 3. ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हम करते हैं. ठीक है, क्या करना है हमें? उज़ैर लास्ट में एक एक्सपोनेंट में आंसर रिलीज करना है. अभी पूरा रायता फैला हुआ है, इसको नीचे से ऐसे उठा के डब्बे में घुसा के फ्रिज में घुसाना है ना? चले आइए, इसको क्लीन कीजिए. इसको क्लीन करने से 2 to the power 3 into 2 हो जाएगा. This into remains the same. And this becomes, समझ में आया? इससे हमें क्या मिला? 2 to the power 6 multiplied by 3 to the power 6. Magen to the power 6 into Chagan to the power 6. Magen into Chagan to the power 6. ये और आगे जाएगा. कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा अभी? ये वाला लॉ लग रहा है. देखो अच्छे से. 2 to the power 6 into 3 to the power 6. Here exponents are same. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके कॉमन वाला एक्सपोनेंट डाल देंगे. इससे क्या हो गया? 6 to the power 6. क्या आपने हमारी तरह आंसर छोड़ा? बिल्कुल छोड़ा. क्या ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ? बिल्कुल कंप्लीट हुआ. समझ में आया? थोड़ा पल्ले पड़ रहा है, मतलब एनिमल थोड़ा समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए, एनिमल को और अच्छी तरह देखा जाए. सर साहब थोड़ा समझ में आ रहा है? पुराने वीडियोस देखिएगा थोड़ा सा. चलें, शैल वी?
Now, when I go to the next page, I can do one thing. I can either rub this off and do it here so that these laws are open for you. But you are writing the laws every time, right? You have written the laws. So I'll take a new page, but now I won't write the laws. Let's see whether it clicks our mind or not. Ab blank page karunga. The laws no more will be written on your left. Actually, it should not have been. They should have been in front of the wash basin, in front of the toilet seat, and in front of your study table, as we had last discussed. Right. चलिए आगे एक नया प्रॉब्लम करते हैं. इसमें भी वही है, सिंप्लीफाई -3 to the power 2 और इसके बाद हमारे पास है 5. क्या करेंगे इसको हम? इसे भी हम -3 ले सकते हैं और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हमारा आंसर हो गया -3 to the power 10. जब भी आप नेगेटिव के साथ पावर लिखते हैं, नेगेटिव इज लाइक समबडी हु हैज जस्ट कम आउट ऑफ द बाथरूम फ्रॉम शावर. उसको ब्रैकेट पहना दीजिएगा साथ साथ, ठीक है? खाली नहीं छोड़ना है नेगेटिव को. और प्रतीक पुजारी, व्हाट्स अबाउट योर कैमरा माय डियर? ओ, लाइट फीवर हो गया? क्या हो गया? आज तो यहाँ बहुत अभी थंडरस्टॉर्म चल रहा है हैदराबाद में. फीवर हो गया कैसे बेटू? यू आर ऑल राइट? हाँ, तो आवाज तो एकदम डाउन हो गया है. क्या हो गया? खांसी बस? ओनली फीवर और स्टमक इज ऑल्सो गॉन? हाँ, गर्मी तो हुआ होगा, खूब खिलाया होगा, खूब खाया होगा. हाँ, जमाई प्यार मिला, खूब खाया, पेट खराब हो गया. Hey, if you don't feel good, you can leave the class also. I will not mind, but I want your health to be good. सबसे पहले 2 काम करो, खूब पानी पियो और सम टैंग वैंग बना लो और उसको पीते जाओ. हाँ, your whole body has to be flushed out. चलें, अब थोड़े और टाइप के प्रॉब्लम्स देखते हैं. ओके, ऑन सिंप्लीफिकेशन पार्ट. नाउ even the previous book was so good. These are so nonsense type of problems, na? Okay. Say suppose there is a question which is -3 to the power 2 multiplied by 2 to the power 2. इसको just exponents में हमें convert करना है. क्या करेंगे? -3 और 2 को हम multiply कर सकते हैं एक साथ because the exponents are same. So we can do, in our next step, we multiply -3 with 2 and we put the common exponent. So it becomes -6 to the power 2. और अगर आपको ये solve करने बोले कोई, somebody says solve it, then the answer should be how much? 36. Remember one thing, any negative number with an odd exponent will result in odd value. No, negative value. And any negative number with an even exponent will result in positive value. This is with an even exponent. So our answer will come plus. Even means the negative number is getting multiplied twice, right? If it was -6 to the power 287, answer would be in negative. And if it was 288, answer will be positive. Is this thing understood? Very good. चलिए, दिमाग का दही टाइप प्रॉब्लम्स है. चलिए, ऐसे टाइप प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं. मान लो, अब आप खुद देखोगे, आपको एक प्रॉब्लम दिया किसी ने 2 to the power 3 multiplied by 2 to the power 5. पेज मत पलटिए, थोड़ा सोचिए, यहां क्या सेम है? बेसिस सेम है ना? मगनलाल to the power 2 into Maganlal to the power 3. तो हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं. समझ में आया ना? So here we will have Magan 3, Magan 5. So it will be Magan 3 plus 5. 2 to the power 8. लेकिन ये करने का आपको राइट किसने दिया? Who gave you the right? You will say, sir, there is a law. तो लॉ को लिखिएगा भी. Since a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. When you go to grade 9, then you are not supposed to write these laws. Have you understood? But in grade 8, you are learning this. Every time you start your vehicle when the light is green, I have a right to say, hey, why did you start your vehicle? As because green light tells us go, go, go. You have to write that. But when you are an expert driver, if I say, why did you turn your car on? And when you're moving your car when the light is green, you just say, keep shut. Don't you know? Are you nuts? So in grade 9, you did not write all this. But in grade 8, कानून को सबूत चाहिए. आपने ये लिखा, कैसे लिखा?
सबूत। समझ में आया? मजो आयो? आइए एक और प्रॉब्लम, अवियन बाबू समझ में आ रहा है? तो चलिए एक और टाइप प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार हमारा फॉर्मूला है, प्रॉब्लम है 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 4 मैगन, but we have got different. As long as bases are same, we just add the exponents, है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये दो को पहले कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 to the power 2 plus 3 multiplied by 3 to the power 4, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लिख देंगे a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। तो ये कितना हो गया, 3 to the power 5 multiplied by 3 to the power 4, तो ये हो गया 3 to the power 5 plus 4, यानी कि ये हो गया 3 to the power 9। और आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी करेक्ट है, 3 plus 2 5 plus 4 9। एक रिकॉर्ड हो गया, आज 10 मिनट हो गया, मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया अभी तक, है ना? हाँ स्वयं नहीं है ना, स्वयं रहने से कुछ ना कुछ ढूंढेगा, काली जुबान है उसकी, ठीक है? इज इट करेक्ट? समझिंग? अब एक गजब प्रॉब्लम करते हैं, गजब प्रॉब्लम, डोलो वाला प्रॉब्लम करें। बस यू हैव टू जस्ट सी दैट यू आर ओबेइंग द राइट लॉज, आप कानून के मुताबिक चलिए, फिर आपको कोई नहीं पकड़ेगा। करें एक नया प्रॉब्लम, ठीक है? हाँ सर, कहाँ गायब हो गए थे सर आप? हे, तू पहले खुद ठीक हो, उसके बाद डोलो या हॉस्पिटल। 2 दिन बाद ही लुढ़क जाता है, नॉन इम्यून गाय। तो खट्टा खा बैठ के, विटामिन सी इंप्रूव कर, ऐसा प्रॉब्लम आ गया, गजब। पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की लड़ाई एक्सपोनेंट के साथ होती है, रिश्तेदारी हमेशा बराबर वालों में होती है, और ये बराबर नहीं है, तो पहले इन्हें बराबर कीजिए। आइए, ये बन गया 7 to the power 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 7 क्यूब। अब डिवाइडेड बाई आमा डिवाइडेड बाई आना इज r to the power ma minus ना। तो क्या लिखेंगे अभी, 7 to the power 6 minus 3 7 to the power 3। मजो आयो? कुछ समझो? कुछ डाउट आयो? अभी तक गाड़ी ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब गजब प्रॉब्लम, गजब प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, 2 का सर पे बढ़ गया 20, समझ रहे हैं ना? और इसका डिवाइडिंग हो गया है 2 के सर पे 15, ठीक है? और इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के सर। तो बदमाश कहता क्या है कि पहले ब्रैकेटवा को कीजिए। ब्रैकेट के अंदर कौन है, ये 2 है, ये पे क्या वाला लॉ लगेगा, आमा डिवाइडेड बाय आना, तो लगाएं उसको। आइए, तो यहां लॉ हो गया 2 to the power 20 minus 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 3, है ना? अब आप इस 3 को यहां जोड़ भी सकते हैं, हायर क्लासेस में हम वही करेंगे, इतना तोड़ के थोड़ी कोई देगा। चिल्ड्रन ओपन द रैपर, थ्रो इट इन द बिन, now take the chocolate, chew it slowly, make sure it doesn't stuck in your throat, if that happens cough hard and spit it out। ऐसा कोई नहीं करेगा, एक बार में करेंगे 2 to the power 5 into 2 to the power 3, यानी कि 2 to the power 5 plus 3। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस प्रॉब्लम को देख के ही समझ जाए, क्या समझ जाए कि ये प्रॉब्लम कुछ और नहीं, ये तो है रुपया, है ना? तो 20 minus 15 कितना होता है, 5 के साथ 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8, तो हो गया 2 to the power 8। हाँ सैद साहब, गल पे आ गई, समझ में आ गई? कोई बात नहीं, आगे बढ़े। बाकी सब सारे चिन्नू मिन्नू प्रॉब्लम्स तो मैं करता ही नहीं हूं, औकात के बाहर है ये सब प्रॉब्लम, औकात। आओ हाँ बोलो बेटू, क्या डाउट है, बोल बेटू। तुम्हारा वॉइस कट हो रहा है, धीरे धीरे बात करो, बोलो। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं प्रतीत, धीरे धीरे बात करो। बिल्कुल दे रहा है।
मैं जब आरटी शर्मा का सर्च कर रहा था, ओके, सामने वाले भी मैं जब आरडी शर्मा का प्रॉब्लम्स कर रहा था वहां तक मैं समझा, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे बात करना। मैं जब आरडी शर्मा का प्रॉब्लम्स कर रहा था उसके बाद एक प्रॉब्लम में स्टक हो गया था। आप एक प्रॉब्लम में स्टकअप हो गए थे। ओके, आगे। उसका हेल्प करो। बिल्कुल हेल्प करता हूँ सैयद साहब। तब तक आप एक काम कीजिए, वो पीछे का दरवाजा खोल दीजिए, बारिश रुक गई है, नहीं तो गर्मी में हम उबल जाएंगे। जस्ट ओपन द स्लाइडिंग डोर टुवर्ड्स योर लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उधर देख तो, उसको खोल सकने से पानी नहीं आ रहा था, खोल देना, गर्मी बढ़ जाएगा। हाँ चलो, इसका डाउट भी क्लियर कर देते हैं ना। आई मीन कीप द मस्कीटो नेट एंड ओपन द पेन। खोल दिया, मजा आएगा, अभी ठंडा हो गया। हाँ प्रेस कर बेटा, प्रेस करके पुश इट ऑन द लेफ्ट, पुश इट ऑन द लेफ्ट, इजीली जाएगा वो। हाँ मजा आ रहा है ना, एसी एसी फीलिंग आ रहा है ना अभी। हाँ चलो बोलो, क्या प्रॉब्लम था तुम्हारा? एक मिनट। हाँ, द क्वेश्चन इज, दिस इज प्रतीत पुजारी's question, okay, but it is everyone's question also. He says 2 to the power -3. तूने सबसे हाँ पी बाई क्यू में डालेंगे, पर तूने लॉ लिखा ही नहीं। 2 to the power -3 तो बहुत ही आसान है। 1/2 to the power 3, ये कहता है इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो लिख दो ना। कितना हो गया? 1/8 हो गया p बाई क्यू। ये थारो p और ये थारो q। x to the power -m is equal to 1/x to the power m, ये रूल है ना हमारा। हाँ क्या कर रहा था? अंडे छील रहा था क्या घर पे बैठ के? यहाँ पे है ना ये वाला कानून का एक, कहाँ ये कब लगाएगा? x to the power -m is 1/x to the power m। अब समझ में आया प्रतीक साहब? और कोई डाउट? चले फिर, नया प्रॉब्लम करने वाला था तभी इसने रोक लगा दी, काली जुबान। ठीक है, एक नया प्रॉब्लम ले लो डर्टी फेलो कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, गजब प्रॉब्लम। 2 to the power 2 to the power 3, e का गुना हो रहा है 3 to the power 6 के साथ, और e ससुरा का गुना हो रहा है 5 to the power 6 के साथ। समझ में आया ना? हाँ पंचम क्यों और होता है 5। चले इसको करें, थोड़ा दिमाग लगाने से हम देखेंगे कि इसमें बेसेस अलग अलग हैं पर एक्सपोनेंट ससुरा एक ही है ना? है ना? आ जाओ, तो पहले ब्रैकेटवा को संभालते हैं। 2 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 6, इसके बाहर है 5 to the power 6, तो ये तो हो गया कितना? 6 to the power 6। समझ में आया? ये स्टेप समझ में आएंगे नहीं? 6 to the power 6, यस सर समझ में आया? अच्छा आप हिंदी समझ पाते हैं? अच्छा मैंने कभी सुना नहीं आपकी जुबान से, मतलब जर्मन में तो बोलना नहीं पड़ेगा ना? Guten Tag, okay, not good, you understand, into 5 to the power 6। यहाँ भी दोनों एक्सपोनेंट बराबर है। देखो क्या होता है ना, जब सब लोग हिंदी समझ जाते हैं, एक चीज आता है हिंदी में डांटने में ना मजा है। जैसे मैं अगर बोलूँ ना, एक थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा, इसको इंग्लिश में बोलने से मजा नहीं। आई विल स्लैप यू वंस एंड ब्रेक योर चीक, मजा ही नहीं। ब्रेक योर, ओ हिंदी में ही मजा आता है, कान पकड़ के ना उठा दूंगा, फीलिंग आती है ना भाई साहब, है ना? 6 5 हो गया 30 और सर पे बैठ गया 6। हाँ दोनों भाई साहब ऊपर दोनों सेम है ना, सेम है। अरे भूत नहीं, क्या तेरे को कानून समझ में नहीं आ रहा? ये कानून समझ में नहीं आ रहा है? इतने देख, लड्डू लगे दोनों मोतीचूर के लड्डू, नीचे जो भी हो जाए भाई साहब, ऊपर मोतीचूर का लड्डू बैठ जाए। लॉ लिखा कर भाई साहब, लॉ जो बनाया ना रोज आके, इसको लिख के एक पढ़ाई के टेबल में, एक ब्रश करने वाले वॉश बेसिन के सामने, और एक ध्यान करके जो बैठ जाते हो ना WC वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, उसके वॉल में। जोक नहीं कर रहा हूं मैं, वहां भी एक रहना है, तभी आपका दिमाग बैठेगा। ये इसको पता है? हाँ कल ग्रेड 9 वालों को भी यही सिखाया। It has to be, then only you will learn। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ अलग अलग जगह जहां रखा हो, लेकिन बाथरूम इज द, तो यार समझते नहीं हो ना तुम अभी समझे।
तुम लोग समझते नहीं हो प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही फॉर्मूलाज बढ़ जाएंगे ना, ये 1-2 है, 11 में जाके जब 13, 34, 35 फॉर्मूलाज आएंगे, आपसे नहीं होगा। दैट टाइम मन एकाग्र इज वेरी नेसेसरी। चलिए आगे, कौन सा जीरो बेटा बोलो। हाँ लिखा है ना, क्या हो गया, बॉम्ब डाल दिया क्या, ग्रेनेड मार दिया क्या? मैं सोचा यार ग्रेनेड मार के चला गया, सब फोड़ जाओ। आई स्किप्ड अ पेज। वेरी गुड। चलो अगला प्रॉब्लम, जबरदस्त प्रॉब्लम इस बार करें। आइए, ये प्रॉब्लम है कुछ ऐसा, a by to the power 5 multiplied by to the power 10। अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहां अभी हमें थोड़ा सा 2 नंबरी करना पड़ेगा, ठीक है ना। टू the power 10 a by b to the power 5 multiplied by what do you call b to the power 10, ये हमें सॉल्व करना है। समझ में आया? यहां कोई एक्सपोनेंट भी बराबर नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन बेसिस हैं, b कॉमन बेस है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फैला के लिख सकते हैं। कैसे फैला के लिखेंगे, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखो, a to the power 5 लिख सकता हूं और इसको लिख सकता हूं b to the power 5। दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन को दादाजी ने 5 रुपया दिया, इसका मतलब भाई के पास भी 5 रुपया, बहन के पास भी 5 रुपया होगा ना। ये तो लिखा था थोड़ी देर पहले, याद है, यहां पे लिखा था। दिस इज वेयर योर मेमोरी विल बी टेस्टेड यू गाइस। यहां पे लिखा था, देखो यही होता है टॉयलेट के पास लिखने से भी। ये हमारे सर सिखाते थे कि आप सिर्फ याद नहीं रखोगे, आप ये भी बोलोगे कहां है वो। And children who do that, you know, when they start arguing with their classmates, they say, this problem's answer is 5. It is on my book, on the left-hand side, bottom portion. Every day I do it. हाँ सर ऐसे बोलते थे, इतना आपका मेमोरी आ जाएगा, और ये होना चाहिए आप। ठीक है, चलिए आइए, और साथ में क्या है बेटा, b to the power 10। मैगनलाल, तो चलिए मैगनलालों को सुलटाया जाए, तो b to the power 10 minus 5। समझ में आया? ऐसा करने में हमें मिला छगन टू the power 5 एंड मैगन टू the power 5। अब 5 और 5 कॉमन है, यानी कि मैगन और छगन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज ए बी, और ये हो गया 5। बड़ा सुंदर प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, लेकिन लिख लीजिए प्यार से, सुंदर मोटे मोती वाले अक्षरों से। अभियान बेटो समझ में आ रहा है? तो वो वीडियो गेम रील डाल रहा है खेल खेल के। यही प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया में फोटो आ जाने से सर भी तो देख लेता है कि लड़का कर क्या रहा है। वो वीडियो गेम खेल रहा है बैठ के घर में, एक हाथ में माउस, एक हाथ में मॉनिटर, नजर पूरा लैपटॉप के ऊपर, घोड़ा बिल्ली दौड़ रहा है, और लड़का क्या कंसंट्रेशन, उसका 20% भी मेरे क्लास में कभी दे दे, तिलक लगा दो उसके चेहरे पे, है ना। चले आगे। अभी जो प्रॉब्लम कराऊंगा ना, इसके ऊपर बहुत बच्चों को तो डिसेंट्री हो गया था। हाँ आ जाओ, अब समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज अराउंड दोस लॉज। अच्छा ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है डिवाइडेड बाय, बुक का ही प्रॉब्लम देखे तो कितना में था, भाई साहब, भाई साहब, ना तो मगन और मगन की मिलन है यहां पे, ना ऊपर मिलन है। समझ में आ रहा है? बेसिस मैच नहीं कर रहा है, एक्सपोनेंट भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इस बेस को चेंज किया जा सकता है। और इसको हम चेंज करेंगे एब्राकाडाब्रा। क्या हम 8 को 2 क्यूब नहीं लिख सकते? इज 8 नॉट 2 क्यूब? है ना, है ना। शैतान मतलब ही तो सहज है ना, तो जहां सहज दिखा वहां शैतान लिख सकते हैं ना, है ना। और जहां रूहान दिखा वहां मुंह में हाथ लगा देंगे ऐसे करके, हैं लगा के बोलेंगे हाँ गया है, किशोर के बापू गए हैं खेत में फसल काट रहे हैं, यहाँ क्या करते हैं 2 to the power 3
अब थोड़ा मगन मगन टाइप केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बन रहा है, थोड़ा दिख रहा है ना, राइट। Which two come from Bito? This is this 8. 8 is what? 2 cube. And then there is a 8 square, so 2 cube का square. कौन सा? अभी रुको ना, ये समझ में आया कि नहीं? उतना रहो ना, तुम आगे क्यों दौड़ते हो, इतना में रहो, संतुष्ट रहो। समझ में आया? Did you understand this step? बाबू क्लियर? तो आगे चलें। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? a to the power 2 to the power 6 divided by 2 to the power 3 लिख सकता है ना, है कि नहीं? इसमें लॉ लगा दें, अभी 6 - 3 लगा दें, तो कितना हो गया? हाँ, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व, सुन लो, लास्ट टाइम क्या बोला था? सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस टू एक्सपोनेंशियल। अगर आपको सिर्फ बोला सिंप्लीफाई और कुछ बोला नहीं, मसाला डोसा ले आइए, तो आप ऐसे करोगे ना, मेरे लिए आपको फुल मार्क्स है। और अगर कोई टीचर बोलेगा आपको ऐसे कि अगर ये सॉल्वेबल रेंज में है, सॉल्वेबल रेंज, यू नो व्हाट इज सॉल्वेबल रेंज, है ना बेटा, आप मेरे एक घर का बर्तन तो मांज ही सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि पूरे पेबल सिटी का बर्तन मांजो आज, आई थिंक दैट्स टू हार्श ऑन यू। सो 2 to the power 67 आएगा तो उसे सॉल्व करना नहीं है, पर 2 to the power 3 आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप 8 लिख के छोड़ दोगे, देन ऑल्सो इट्स चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, है ना, गोल्डन गिटार मिल जाएगा इसमें। समझ में आया? लेकिन आप अगर 2 to the power 3 लिखो ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको फुल मार्क्स ही दूंगा। मैं मार्क्स काटूंगा अगर स्टैप किसी ने जंप कर दिया ना, स्टैप जंप, नंबर्स आल्सो जंप, नजरें हटी दुर्घटना घटी। समझ में आया? चलिए, अच्छा थोड़ा सा कानून भी लिखा कीजिए। यहां पे आपने क्या कानून यूज किया था? a to the power m to the power n is equal to a to the power mn। और यहां पे आपने क्या कानून यूज किया? a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। अदालत सबूत मांगती है भाई साहब, ठीक है? करेक्ट? यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चलिए अगला प्रॉब्लम, गजब, इसी टाइप में देखता हूं किसके दिमाग में है अंगूर का दाना और इसे वो कर सकता है सॉल्व। आइए अगला प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम है, नंबर लगे बतख की तरह, 2 25 के सर पे है 4, समझ रहे हो? 25 के सर पे 4, और इका डिवाइड हुआ हो रहा है 5 के सर पे 3। मगन लाल छगन लाल सब अलग है अभी इसमें, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तुम लोग तो यार चिरागदीप इंटरनेशनल बच्चे हो। 5 स्क्वायर का मतलब है 25, है ना? 25 के ऊपर कितना था, तो इसके ऊपर भी तो बिठाना होगा। ये है सहज, ये है शैतान टू द पावर 2। सहज टू द पावर 4 मींस शैतान स्क्वायर टू द पावर 4, है ना? कोई बड़ी बात तो है नहीं। और योग ये हो गया, समझ में आया? अब क्या करेंगे? कानून 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3, ओम स्वस्ति स्वाहा। यहां पे आप कौन सा लॉ लिखोगे? यहां लिखोगे कि a टू द पावर m टू दी पावर n होता है a टू दी पावर mn। इसके बाद हो गया 5 टू दी पावर 8 माइनस कितना? 3, 5 टू दी पावर 5। यहां हो गया a टू दी पावर b, सॉरी, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। और 5 टू दी पावर कोई आपको सॉल्व करने नहीं बोल रहा है। 25 into 25 is 625, another 5। If you think you're too good, you can do it. If you don't do also, I don't mind. But have you understood what we are doing right now? We are dancing around those 7 laws only in order to make our life easy. अब सवाल पूछो, सर ये चैप्टर सीख के फायदा क्या हो रहा है? अगर ये चैप्टर नहीं जानते, suppose if you would have not known this chapter and you would have been one of the breeds of Dhachu Dhachu, then you would have solved first 25 to the power 4. Then you would have solved 5 to the power 3. Then you would have made one that decathlon t-shirt, and then you would have done the division. And after that I can only call you BANDAR, Bander, you know, because you don't know what is the law of exponent.
बट नाउ लाइफ हैज बिकम सो इजी. डू गेट इट? चले आगे. बढ़िया. कॉपी करना था क्या? बैक करूं? चले. अब एक गजब प्रॉब्लम करेंगे. कौन सा प्रॉब्लम? एकदम गजब. अभी जो प्रॉब्लम दूंगा ना उसके बाद सीधा एम्बुलेंस आएगा. अभी 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4. समझ में आ रहा है? बैठा हुआ है किसके ऊपर? 3 गुना 32 के ऊपर बैठा हुआ है. भाई साहब, द होल चैप्टर इज अबाउट कन्वर्टिंग बिगर नंबर्स टू small chinnu chinnu numbers with some crown on their head. Which one? 4 and 34? Yes, you can simplify. There are many ways to do it. इसको 8 बना दो, वैसे भी हो सकता है. नहीं तो इसको आप 4 को कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंट में. दूध का दूध, पानी का पानी एक बार में कर सकते हैं. You are also correct, no doubt about that. But इसको ऐसे भी कर सकते हैं. We'll do your way also. Yes, you are also correct. No issues. 2 3 3 4 2 2 ये लिख सकता हूं. एक्सपोनेंट्स का चैप्टर है ना, तो एक्सपोनेंट्स में खेलेंगे. एक्सपोनेंट्स में खेलेंगे. टुडे इज अ पनीर फेस्टिवल. एवरीथिंग शुड बी पनीर. पनीर बटर मसाला, पनीर चिली, पनीर 65, पनीर प्याजा, पनीर 2 प्याजा. 2 to the power 5. 32 होता है 2 to the power 5. मजो आयो. अब अगर आप ऊपर और नीचे देखें आपको सिर्फ मगनलाल और छगनलाल दिखेगा. एक है 2 और एक है 3. पूरा गेम इनके ऊपर हो रहा है. आइए फिर सच्चे हिंदुस्तानी की तरह इसे हम सॉल्व करें. ऊपर में कितने 2 हैं बेटा? ये 2. तो इनके दोनों जुड़ गए. और नीचे भी एक 2 है, उसके सर पे है 5, तो वो हो गया -5, क्योंकि वो माइनस में है ना. अच्छा, और ऊपर क्या है बेटा? एक 3 है जिसके सर पे है 4, और नीचे एक और 3 है जिसके सर पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो है 1. यहां पे 1 है ना, तो वो 1 को हम यहां ला सकते हैं. कौन सा? क्या डिवाइड है ना अल्टीमेटली. मैगनलाल डिवाइडेड बाय मैगनलाल. प्लीज डोंट फॉरगेट द लॉज. या तो ये कितना हो गया? 2 to the power 5 -5. ओहो भाई साहब, गजब. हाँ, सॉल्व करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप पहले करते हैं. और ये कितना हो गया? 3 to the power 3. मुझे आयो भाई साहब यहां, लेकिन हो गया 2 to the power 0. यस, वेरी गुड. किसी भी चीज के ऊपर अगर 0 है तो वो हो जाता है 1. 1 into 3 to the power 3, यानी आंसर है 3 to the power 3, यानी आंसर है 27. इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं. अब देखो इस प्रॉब्लम में जो रेयांश ने बताया वो करेंगे, और भी बहुत सारे ट्रिक्स लगाएंगे इस प्रॉब्लम में. ट्रिक्स ये समझ में आया? we'll apply lot of tricks. let's see what all tricks we can apply. ठीक है. ये हमारा बच्चा बोल रहा था सर आप इसको पहले ही काट दीजिए, ये 8 4 8 32 हो जाता है. वेरी गुड. in that case the problem reduces to 2 cube 3 to the power 4 divided by 3 into a 2 cube. Do you agree? 2 cube is 2 cube, 3 to the power 4, 3 to the power 4, 3 3, और इस 8 को मैंने 2 cube लिख दिया. 2 cube divided by 2 cube, आंसर हमेशा 1 ही होना चाहिए. आप सोचो ना, यहाँ पे हिपोपोटेमस डिवाइडेड बाय हिपोपोटेमस कितना होता है? 1 ही तो होता है ना. लेकिन हम लोग क्या है, हम लोगों ने एक्सपोनेंट सीखा है, तो बाबूजी की कसम कानून मान के चलेंगे. मान के चलो, कौन मना किया? तुमको लिखने का शौक है, लिखो. 4 - 1 2 to the power 0 3 to the power 3 1 into 3 to the power 3 is equal to 3 to the power 3 is equal to 27. ये चीज समझ में आया? ऐसे भी आप कर सकते हैं. आइए देखते हैं कुछ और छुपे हुए चीजों को. ठीक है, ये नंबर को जरा गौर से देखो. इस नंबर को, इस दिस नंबर, इस नंबर को देख रहे हैं आप गौर से? मैं थोड़ा सा इस चीज को ऐसे लिखता हूं, देखो तो. 2 cube 3 4 2 square 3, और ये क्या है ना, वेजिटेरियन घर में नॉनवेज खा के आ गया है, तो इसका दादी माँ क्या बोलता है? तेरे बर्तन अब से अलग कर दूंगा मैं. क्या अलग कर दिया इसका बर्तन? फिर भी तो करेक्ट ही है ना.
एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग रॉन्ग, ठीक है। उस तरह से दादी माँ ने एक और काम किया। दादी माँ ने बोला ये दोनों बच्चे बाहर से नॉनवेज खा के आए हैं, इन दोनों को अलग करो, दोनों को अलग कर दिया। समझ में आ रहा है? ये स्टेप और ये स्टेप तो सेम ही है भाई साहब, समझ में आया? अब देखो 2 to the power 3 को हमने 2 to the power 3 रख लिया, 3 to the power 4 को भी 3 to the power 4 रख लिया, 2 स्क्वायर को भी 2 स्क्वायर रख लिया। अब याद करो 25 जनवरी की रात को 2 to the x to the power minus m is 1 by x to the power m. So 1 by x to the power m should be x to the power minus m. Did you understand what I have said? Array, you interesting fellows. If x to the power minus m is 1 by x to the power m, then 1 by x to the power m is also x to the power minus m. दुबे जी का बेटा अगर सिद्धांत है तो सिद्धांत का बाप दुबे जी है ना, तो कौन सी बड़ी बात है? तो भाई साहब इसको क्या लिख दूं? 2 to the power minus 5 लिख दूं, है ना? और इसको क्या लिख दूं? -1 लिख दूं, है ना? अब जरा समाज में देखो, ये भाई साहब सारे मगन लाल है, सारे मगनों को एक साथ कर दूं, इसका है 3, इसका है 2, इसका है -5, और ये है छगनलाल और ये भी छगनलाल, तो छगनलालों में 4 - 1। भाई साहब आ गए फिर यहाँ पे हम अब 2 to the power 5 minus 5, 3 to the power 3, 2 to the power 0 into 3 to the power 3, आंसर कितना आया? 1 into 3 to the power 3, 3 to the power 3 यानी कि 27। भाई साहब आपकी नाक है, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, टी शर्ट के अंदर से लेके पकड़ो, अपना ही नाक पकड़ो, आंसर एक ही आएगा। जब तक आप कानून मान रहे हो, answers cannot be different. The only thing that can be different is maybe you might do 2-3 steps more. That is not the issue. But you will arrive at the same answer as long as you are driving by the driving rules. You will reach your destination. कहीं ORR से चले जाओगे, तो कहीं सर्विस रोड से जाओगे, है ना? और कहीं हमारे पापा के पास बहुत पैसा है, हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं, एक जगह ना जाएंगे। हाँ ठीक है, समझ में आया? हमारे घर के पीछे एक भल्चर आया था, उसको बोला रुक जाओ, हम तुमने पीठ पे बैठेंगे और फिर आगे। Did you understand? You better understand. Shall we take some more problems? अब लेकिन गजब प्रॉब्लम है। हाँ गजब, ये प्रॉब्लम देखते बहुत लड़का लोग ना एकदम, लड़का लोग बोले तो मैंने ही, हम लोग बोलते ना मैन मीन्स बोथ, मैन हैज एवर सिंस मैन वाज बोर्न, जैसे बोलते हैं ना, डोंट बी जेंडर इंक्लूसिव। ओके आई एम सेइंग लड़की लोग, चलो इसमें दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैं लड़का बोला, तुम खुश होना चाहिए। हॉस्पिटल जाने से तुम क्यों जाना चाहते हो? जब हम बोलेंगे सारे लड़के लोग मिठाई खाने गए, वहां आप जाइए ना, आए हॉस्पिटल के लिए, बेकार में। नारी प्रगतिशील है इसका मतलब थोड़ी अस्पताल में जाओगे। 2 to the power 55 समझ में आया? मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 60। कुछ नहीं, मैथ्स नहीं सीख सकते हो मेरे साथ, पर हिंदी सीख के जाओगे। 2 to the power 97 इंटू 2 to the power 18। अच्छा इसमें क्या 18 है ना, 18 बरस की गाना ही है 18। तो इसमें क्या हो रहा है, तुमको तो येड़ा बना रहा है ये लोग, सब मगन लालों में गेम हो रहा है, बस ऊपर में थोड़ा सा नंबर आगे पीछे कर दिया है ना? हाँ सर, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे यहाँ पे? क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे? कुछ भी। आदमी को खून चाहिए, तुम क्या इसका मतलब कुत्ते का खून लगा दोगे? सर दोनों रेट लग रहा है, दे दो उसको, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया भाई साहब। गेम क्या हो रहा है, 55 का योग होगा 7 के साथ, है ना? और फिर -57 का योग हो रहा है किसके साथ? 18 के साथ। समझ में आया? बहुत बढ़िया बात है। आइए अब जरा देखते हैं 55 और 60 जोड़ने से कितना होता है?
60 प्लस 50 इज 110, 115। और उस साइड कितना होता है? 7 प्लस 8 15 का 5, हाथ से लगा 1 1 और 1 2 2 और 9। ये है भाई साहब। हाँ, क्या लिखूं इसके आगे आंसर? इसका आंसर क्या लिखूं? और इडियट्स, इडियट्स। अरे ये है हाथी घोड़ा मेंढक, ये भी है हाथी घोड़ा। 0 इज द आंसर। दिस नंबर सॉल्व विल गिव यू सम हाथी। दिस इज ऑल्सो सम हाथी। हाथी माइनस हाथी इज व्हाट? हाथी का बच्चा। 0। छी 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 छी। सीबीपी डीएम हमेशा याद रखना, बहुत अच्छा। ये मेडल में ऐसे जब बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं एंड दे आर इन डाउट, पीडीएम बताता हूं। फुल फॉर्म बोलते ही लज्जा से मुंह नीचे आ जाएगा, तो पहले सुन लो, ये लिख के रख लेना। सर बीच बीच में ये मेडल देते हैं, आज मैं ये मेडल सबको दे रहा हूं। लास्ट में थोड़ा निवेदिता को देते देते नहीं दिया क्योंकि उसने मुंह से बोल दिया 0। बाकी सबको ये मेडल मिलता है। इसका अर्थात है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। समझ में आया? हाँ, चुल्लू मतलब पता है ना? A broken half shell of a coconut, after taking out the coconut, the brownish thing which you throw, that is called chullu. In that you fill water and try to drown yourself to death. Is that possible? Whole life you learn. So CVP DM वाला मेडल, यहाँ पे एक ऐसा बढ़िया मेडल रहता है ये CVP DM मेडल, और ये अभी आज आप लोगों को दिया गया है क्योंकि आप इस स्टेप के बाद एक्सपोनेंट्स कर रहे हो ना, तो योर माथा इज ओनली थिंकिंग एक्सपोनेंट्स। दिस इज सिंपल। ओ वाह, देख, यू नो शीप जानते हो? शीप, हाँ शीप। तो शीप है, ये एक शीप है, मान लो ये 4 टांग वाला एक शीप है ऐसे, ठीक है ना? और यहाँ पे एक डंडा रख दो, और ये शीप जैसे ही आएगा वो क्या करेगा? इस डंडे को जंप करेगा। इसके पीछे सहज और शीप ला रहा है, तो दूसरा शीप जो आएगा वो भी जंप करेगा। ऐसे 5 शीप जंप करके चले गए ना, उसके बाद तुम ये डंडा हटा दो। अब जो 6th वाला शीप है ना, वो फिर भी जंप करके जाएगा। इसीलिए बोलता है भेड़ बुद्धि है क्या तुम्हारा? तो एक्सपोनेंट करते करते ऐसा हो गया कि ये तो बचपन का क्वेश्चन था, इसमें 0 होगा। नो, इसमें लॉ नहीं लग रहा है ना सर, मगनलाल छगनलाल कुछ भी नहीं रहा। इसमें बुर्बकलाल लॉ लगाओ, कुछ भी मतलब। यू गाइस, ये मेडल रख देता हूँ, जरूरत पड़ सकता है फिर से। चलिए एक और प्रॉब्लम करें। आइए, आइए गजब प्रॉब्लम करते हैं। 2 क्यूब, कोई प्रतीत तू है क्लास में? अच्छा, a क्यूब 5a to the power 4। अच्छा, यहां पे सीखिए थोड़ा सा। 5 को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, हाँ, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या आपको यहाँ कुछ मगनलाल मगनलाल दिख रहा है ना? 2 क्यूब a क्यूब, 2 क्यूब a क्यूब, 2a क्यूब हो जाएगा। उधर 5a 4 है, क्या करें? 5a 4 कैसे मैच करें इन सबको? Yes, we can separate them. बात तो सही है। इसको कुछ ऐसे लिखें, 2 क्यूब a क्यूब a 4 और 5 को बोलते भाई साहब थोड़ा बैठिए आप साइड में, चाय वाय पीजिए तो साइड में बैठिए। See, when you are multiplying, then there is, in multiplication there is no tension. Anything can come in front of anything, anything can go behind anything. Multiplication कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अब आ रहा है ये, अब मगनलाल दिख रहा है कि नहीं? तो अब कैसे करेंगे? इसको कर दें 2 क्यूब और इसको a to the power 7 कर दें और इसको 5 कर दें। 2 क्यूब तो सॉल्वेबल है भाई साहब। 8 इंटू 50 इंटू a5 a7 40 a7 सॉल्वेबल है, इसलिए हमने लिखा। सॉल्वेबल नहीं होता तो हम एक्सपोनेंट में ही छोड़ देते। मजो आयो, समझ में आया? श्रेयांश समझ में आ गई नहीं?
अब ये समझ में आया तो ठीक है, चीज को जितना है छोटा वोटा करके पेश करना है। आइए, गजब प्रॉब्लम, इस बार सही में गजब प्रॉब्लम, इस बार सही में गजब प्रॉब्लम। यही तो मजा है ना, मस्ती भी करेंगे पढ़ेंगे भी। 3 to the power n प्लस, ये थोड़ा हाई लेवल प्रॉब्लम है, पहले ही बोल दिया, दिस इज लिटिल बिट हायर लेवल। 3 to the power n plus 1 plus 1 to the power n, ये थोड़ा सा, this thing is actually a grade 9 problem, I would say. This is not not a grade 9 वाइन में आता है, लेकिन आप कर पाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। क्या क्या करें? नो, नथिंग कैंसल्स, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स लगाना होगा। आओ सीखते हैं ऐसे प्रॉब्लम कैसे करते हैं। यहाँ में थोड़ा हमें ड्रैकुला बनना पड़ेगा। ड्रैकुला क्या करता है? खून चूसता है ना, खून चूसना पड़ेगा यहाँ से। आ जाओ, क्या मैं इसे लिख अच्छा, जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना बेटा, इज इक्वल टू के बाद सबसे पहले लाइन डाल दीजिए, बिकॉज द इक्वल टू एंड द लाइन शुड बी एट द सेम लेवल। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, 3 to the power n, ये भिखारी है, इससे कुछ नहीं ले सकता हूं, समझ में आया? और यहां पे मैं ऐसा तो लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या लिखूं? वन, ये लिख दूं, ठीक है। अब I don't know whether you know, because if you don't know, there's no harsh, nothing wrong, हम algebra में सीखेंगे। आपको कॉमन लेना आता है? कॉमन, how to take common? So you went here and you are asking both of them for some donations, पिकनिक के लिए कुछ दे दो। ये कहता है मेरे पास जो भी है तुम ले लो, 3 to the power n ले लिया इससे, तो यहां से जो लोगे यहां से भी वही लेना पड़ेगा। तो यहां से अगर 3 to the power n ले ले तो कितना बचता है? 3 to the power 1। Just see this step and see this step. 3 to the power n multiplied by 1 is 3 to the power n. 3 to the power n multiplied by 3 to the power 1 is 3 to the power n into 3 to the power 1. Have you understood this? If you have not understood, I'll leave this problem. ये आपको कोई पूछेगा नहीं अभी, हम जब अलजेब्रा करेंगे तब सीख लेंगे। कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? अच्छा, सीखो, चलो थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पे रोक लेंगे, थोड़ा एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है? आ जाइए। मान, हाँ, तू रोज रोज वॉशरूम गया, 2 मिनट रुक जा, बहुत खराब हालत है क्या? बैठ के 1 बोतल पानी पिया अभी और अभी मैं गो टू द वॉशरूम। मान लो आपके पास एक नंबर है 6 और आपके पास एक नंबर है 15। क्या इन दोनों से हम कुछ कॉमन खींच सकते हैं? बेसिकली इनका जो HCF है ना, वो हम खींच सकते हैं। HCF जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो किस दिन काम आएगा? HCF एक ऐसा फैक्टर है जो इसके अंदर भी घुसा हुआ है तो उसके अंदर भी घुसा हुआ है। क्या हम दोनों से 3 निकाल सकते हैं? तो हमने बोला हम 3 निकाल लेंगे दोनों से। 6 बोलता है मुझसे 3 गया तो मुझ में रहा 2, और 15 कहता है मुझसे 3 गया तो मुझ में रहा 5। 2 + 5 कितना होता है बेटा? 7। 7 3 जा, इन दोनों को जोड़े तो इसको कहते हैं कॉमन टेक्निक। हो सकता है ये प्रॉब्लम हम बात करेंगे, आई वोंट डू दिस, पर वही चीज यहां पे सोचो, मैं इनके पास आया और मैं बोला ऐसा कुछ दो जो दोनों दे सकते हो। ये बोलता है इसके पास भी 3 to the power n है, इसके पास भी 3 to the power n है, तो दोनों कहते हैं हमसे 3 to the power n ले जाओ। तो जैसे ही 3 to the power n से 3 to the power n ले लोगे तो क्या बचेगा? उसके पास 1 बचेगा और इसके पास 3 to the power 1 बचेगा, है ना? तो अब
अगर आपको डाउट है, यू अगेन रीमल्टीप्लाई इट. 3 to the power n into 1 is 3 to the power n. ये वाला प्लस ये प्लस, फिर कबड्डी जैसा है, कबड्डी 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 कबड्डी, नेक्स्ट रेड मारो, कबड्डी कबड्डी 3 to the power n 3 to the power n. मजा आया? हाँ, is there. Is there? This should be equal to this. We have not touched the denominator. Have you understood? A और ये सेम है कि नहीं, वो देखो सेम है ना, टेंशन मत लो. नीचे क्या है? नीचे है हमारे पास 3 to the power n, है ना, और 3 to the power 1. नीचे कुछ कॉमन जाएगा? ये प्रॉब्लम अभी नहीं, ये हम जब अलजेब्रा करेंगे तब करेंगे, बट आपको ये वाला स्टेप समझ में आएगा नहीं, ये बोलो. ठीक है, इससे ज्यादा और नहीं. आज के लिए आप क्या करो, आई वोंट आस्क यू टू डू फ्रॉम द न्यू बुक. फ्रॉम द न्यू बुक, पेज नंबर 3.20. 3.20 जो पेज नंबर है ना, 3.20 तक जो भी हमने क्लास में प्रॉब्लम्स किए ना, you just revise those problems once again. You'll find all the problems in your book up to 3.20 page. Okay, all these problems which I have done, I just want you to re-practice them at home, barring this problem. Have you understood? In short, you're supposed to do everything up to example 6 तक. कोशिश कीजिए. Problems कुछ मैंने जंप भी किया है. If the problems are, suppose that there is a problem 2 to the power 3, next problem is 3 to the power 2. I have not done that 3 to the power 2, you do. But आप problems छोड़िए मत. अच्छा, there will be some word problems like Damayanti puts one rose, वो सब अभी छोड़ दो, वो छोड़ दो. Only number oriented problems करो जो सर ने अभी अभी किया है. जो भी problems मैंने किया, इन्हें खुद से करने की कोशिश करो. होगा ना, नोटबुक में तो सब नोट किया. Or else another good thing, see, by tomorrow morning this video will be uploaded. By the time you come back from school, the video is uploaded. जो भी है, स्कूल जाओ या नहीं जाओ, this video will be uploaded. As soon as I write this question on the board, you can still the video, try to solve it on your own. And then if there is a question where there are 3 problems and I have done 2 and you feel एक मैंने नहीं किया, उसको भी आप करो. हाथ साफ करो पहले. Got it? However, please remember the missile. And who is going to put that on the Teams forum? Okay, Shania will put on Teams forum that the test will be held on. What all you will put is test will be held on this day, this date and the day. The topic is this and this. Those who have submitted your textbooks, very good. If you have not, remember to bring it on the test day. And for online children, I will advise how the test will be conducted. That you don't worry. आपका काम है अभी पढ़ना शुरू करना.